हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू लेव गोल्स एकेडमी हमारी मास्टर क्लास में। तो ये हमारी फर्स्ट मास्टर क्लास है और जिसकी हम आज शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर एस कानूनगो के साथ। तो ये मेरी लाइफ के बहुत ही एक मतलब ऐसे दिलचस्प पर्सन रहे हैं जिनसे मैं आज से 2 साल पहले मिला था इनके कॉलेज में। तो जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला तो मतलब मैं बहुत सारे उनके डीन से भी सुना था कि ये एक ऐसे फैकल्टी हैं जिन्होंने मतलब बहुत सारे बच्चों की लाइफ चेंज की है। तो मेरे माइंड में हमेशा था कि मैं इनके बारे में और जानूँ और कैसे इनसे मिल सकता हूँ मैं। सो इन फ्यूचर फिर मुझे इनसे मिलने का मौका मिला। सो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। बहुत सारे इन्होंने कॉलेजेस में एज ए एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस में काम किया है। जो लास्ट कॉलेज जहाँ पे उनके इनसे मैं मिला मैं राइट कॉलेज, तो वहाँ पे उस समय ये प्रिंसिपल डायरेक्टर थे और अभी भी नए इनका कॉलेज में ये प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं। सो इनकी रिसेंट कुछ अचीवमेंट्स हैं। विशिष्टता शिक्षक अवार्ड मिला है 2009 में, बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला है 2010 में, बेस्ट एकेडमिक पर्सनालिटी का 2011 में अवार्ड मिला है कलिंगा भारता से, 2012 में इनको अवार्ड मिला है प्रोफेशनल एक्सलेंस का, और 2013 में इनको बेस्ट डीन का अवार्ड मिला था। 2014 में इनको राज्य शास्त्रीय विशिष्टता शिक्षक अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया था। तो पूरे ऑल ओवर ओडिशा में हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक ऐसे एक्सपर्ट है जिन्होंने अपनी जितनी उनकी एकेडमिक जर्नी रही है ऑलमोस्ट 18 ईयर की, तो इन्होंने इस पूरी जर्नी को 5 ऐसे पॉइंट्स में बांटा है जिसको ये एक बेसिक पॉइंट्स लेके चलते हैं, जिससे मतलब ये बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे एक सिस्टमेटिकल वे से वो अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और जो उनका स्टडी है उसको बहुत ही ईजी और इफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे मतलब वो अपने फ्यूचर करियर्स जहाँ फ्यूचर किसी भी एंगल में वो अप्रोच करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, तो बेस्ट ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं सर डॉक्टर आसस कानूनगो का। सो वेलकम सर। Thank you, Mr. Amarjit, to give the introduction about me. I'm really happy to interact with you, and I remember before 2 years we met to each other at right in a motivation camp and orientation program of my freshers. So I hope in that day you made a miracle. So on that day onwards we have relationship with this education format, and you are giving the opportunity to be share my views regarding the education fact. So many thanks to you all. On this auspicious birthday of प्रभु श्री राम चंद्र की बर्थडे के अंदर जो एक चीज़ हम बताने जा रहे हैं, आई वांट टू से दिस फर्स्ट ऑफ ऑल my dear friends, you all are safe in this pandemic situation. I pray to God, give the power as a warrior to fight and defeat the coronavirus. And in this pandemic situation, as all of know, our nation just to be back to the some years. But I want to share one thing: lack of good education, it will be back the nation to the several generations. So my dear, from the research team tells us there is one way to develop the education system by using the digital methodology. We can solve the problems. Nowadays we have the tablet system is there. Through this you people have to get the online mode teaching and put your career in the right direction. So I pray to God, so you all are safe, my dear students. In fact, before saying something, I want to put myself in a 5 direction, or you can say the 5 fingers. So 5 fingers tells us one is your foundation. Foundation means, my dear students, you have to create a solid foundation. You have to create a solid foundation. I mean, your base must be strong. Building a solid foundation, focus on your board preparation. Whichever you are in the level, maybe in 10th level, maybe in the 12th level, maybe in the graduation level or PG level, always you have to create a solid board foundation. Then the second finger tells us is the most important thing, that is your potential discovery.
as a parents, as a teacher, as a well-wisher, we must be identify the students' discovery, I mean the students' basic interest and knowledge. That is the most interest as a parents, as a teacher, we must be identify the students' interest and knowledge. And we must be assess the student. We must be assess our child, how much he or she has in depth. Third one is your career preparation. We must be prepare the careers. Thus, there must be a goal. Whenever a child, after completing the foundation, I mean, I want to say 10th, up to 10th level is the foundation. After that, in the 11th, 12th level, we have to create our career preparation, because after the 10th level, we have to be think about your either engineering, medical, or general education, whatever the direction is started. So that is known as your career preparation. In this way, we have to choose the right direction of the preparation. And third thing is your revision and practice. The fourth figure tells us is your revision and practice. That revision and practice in the sense you have to be prepared to ourselves. I mean, whatever the taxes is given by your teacher or the faculty, whoever may be, or your self-assessment must be required, and you have to be prepared for any of the competitive examination. And the fifth one, that is your most important thing, that is your brain management. The brain management is not required for the students, it also required for a teacher and everybody. That is one type of food we can say that. You can say that it is a yoga, ethics, cultural programs, sports activities must be required to everybody. So my dear students, I want to say these 5 fingers. One is your fundamental, through which you can create the solid foundation. Second one is your potential discovery, through which identification of your strength and interest. Third one is your career preparation, maybe the JEE or the NEET. Fourth one is your revision and the practice, that is the competitive examination and practices. And the last one is your brain and management, that is your yoga, ethics and amenities. So sir, I have a question. That Yeah, if welcome. today a lot of career options are there in our market, Yeah. still only few students are able to choose their right career options. Is there a problem with our education system, or that is a problem with the teachers or with the parents? They are not able to guide them properly. Exactly, Amarjit. In fact, we cannot blame to the education system, because education system after such 31 years, now the education system is going to be changed. The government, the Minister of HRD has implemented the new education policies. That is a very good, nice policies. But in fact, due to the insufficient of infrastructure of educational system, that is now not be developed, not be implemented. But one thing I want to say that there is a maximum number of students are coming from the rural. The urban level of students, they are getting the multiple options. The awareness has been started, but there not be message passes to the rural level peoples to get the sufficient number of knowledge. Because after the 10+2 science or after 10th, then they only they'll move in the traditional education, Yes. or you can move to the engineering or the medical. So what is the solution that how we can? Solution is that I'm talking to the rural belt. For the rural belt, we the young and dynamic people, we the educated peoples, we must be passes through the message to the parents, through the social media, through the electronic media or the print media, whatever the criteria you have to use it, but pass the message to this. That's what students. Exactly. Yeah, that's So what- I request to you also, Amarjit, because you are putting a very good effort in that area. Why not you campaign in the panchayat level schools? I hope so you will get the better feedback, and whenever the teachers are there, that I can say the teach. I mean the teach the teachers, train the teachers. Yes. So, if we people have to pass the message to the teachers of the primary schools, UP schools, obviously they will be pass this message to the students. The students will get the knowledge, and automatically the education policy will be developed. So we have to approach the villagers. Exactly, you have to move to the root level. Unless until to solve the problem in the root level, the education policy cannot be solved. So my request to everybody, through this, you have to pass this message to the root level. So my second question is how we train the child to do the best in their examination. If there are maximum chances that the maximum students are not going to come to the top of position, like 100 students are taking part in examinations,
only few of them are going to get the top position. But the parents' expectations are so high, and the student expectations also. So even they don't know their abilities. So what is the solution? How we can make an awareness to the student and to the parents that every child had their different abilities and different different character and different space to go in the future. Okay, Amarjit, it's a very nice question. Top is the word is very sense. Everybody's mind, everybody's soul, from the parent side, from the student side, is interested for the top. But it is practically everybody cannot be a top position. But thing is that always we have to be as a parent, I request to the parents. Nowadays the parents are thinking about to get the secure the good marks. Only they are fighting for the mark oriented. But my suggestion to the parents, instead of the mark oriented, they have to create the solid foundation. I mean, they have to get the sufficient knowledge in particular subject, whatever the subject they have to create it. Maybe the arts, maybe the science, maybe the commerce, whatever the any pharmaceutical. जो आपने जो भी सब्जेक्ट ले लीजिए, वो सारे सब्जेक्ट में आपको नॉलेज गेन करना चाहिए. मेरा रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि आप नॉलेज एक्वायर करो. आपको पीपल का पेड़ का नीचे रख देंगे तो आप घर बना सकते हैं. आपका पास नॉलेज नहीं है, आपको बड़ा बड़ा मकान मिल जाएगा, आप उसको कर नहीं सकते. बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को कौन अवेयर करेगा. मतलब पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि कौन अगर आर्ट, मतलब मैक्सिमम पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा, मतलब फोर्स करते हैं पेरेंट्स बच्चों को कि आप IIT और JEE प्रिपरेशंस करो या टॉप से टॉप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, जबकि उनका बच्चा उस पोटेंशियल का है ही नहीं. वो किसी और पोटेंशियल में जाना चाहता है, वो किसी और चीज़ में जाना चाहता है. तो उस रिगार्डिंगली इंस्टीट्यूट्स किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं और आपका इंस्टीट्यूट उसमें किस तरीके से हेल्प कर रहा है, मतलब फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट को राइट पाथ उसका. मैंने अभी जो 5 फिंगर के बारे में बताया था आपको, मेरा जो 3rd फिंगर था, मेरा जो 2nd फिंगर था, पोटेंशियल डिस्कवर. The meaning of the potential discovery is nothing, that is known as your identification of student strength and interest. आपको एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, आपका बच्चे का, आपका स्टूडेंट का, उसका क्या पर इंटरेस्ट है और उसका किसमें नॉलेज है. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का मैथमेटिक्स का नॉलेज है ही नहीं है, आप उसको जबरदस्ती लेके साइंस में डाल रहे हो तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा पुअर से. तो मेरा जो 2nd फिंगर था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट, आप उसको आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे तो द स्टूडेंट, आपका बेटा को और बेटी को अपना करेक्ट डायरेक्शन में ले सकते हैं. और जिसमें उसका हुनर है, जिसके उसका इंटरेस्ट है, उस दिशा पर, उस लाइन पर हम लोग काम कराएंगे. मे बी ए पेंटिंग, मे बी ए डिजाइनिंग, मे बी ए टेक्नोलॉजी, आप आगे बढ़ सकते हैं. मतलब आपका जो 5 फिंगर प्रोग्राम है उसमें जो 2nd फिंगर है, 2nd फिंगर पोटेंशियल डिस्कवर. द मीनिंग ऑफ द पोटेंशियल डिस्कवर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट. आप ये पेरेंट्स को सॉल्व कर लेगा. तो हम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि हम एग्जैक्टली वो 2nd फिगर वाला कहानी आप पेरेंट्स को सिखाएंगे. मैंने एक एग्जांपल दिलाता हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल दिलाता हूँ. अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका डेवलप हुआ है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका क्लास 6 ऑनवर्ड्स स्किल डेवलप करा जा रहा है. सारे बच्चे को स्किलिंग करना चाहते हैं. तो ये सारे दिमाग लग जाता है सबका माइंड में कि स्किलिंग मतलब आपको प्लम्बर हो जाओ, कि कारपेंटर हो जाओ, कि मैकेनिक हो जाओ. नहीं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपका स्किलिंग का समझ में आ जाएगा. सिंपल से मैं बता रहा हूँ. एंशिएंट टाइम में आप देखेंगे जो गांव में हाटो लगे ना, हाटो हुए, हाटो माना करे देखी थी जे बापा पाखे तब पोड़ी वस्तु इन द एज ऑफ 11 and 12. तो उस बेटा और बेटी ने, आप बोलेंगे कि ये चावल का पर केजी रेट है 17 रुपीज एंड आप उसको 350 ग्राम ला रहे हैं, कितना रुपया होगा. वो छोटा बेटा 11-12 साल का बेटा, उसका पापा आपका पास बैठ के ट्रेडिशनली स्किल्ड होके वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपका पर केजी 17 रुपीज 350 ग्राम को कितना होगा वो बता सकता है, तुरंत बता सकता है. एग्जैक्टली. बट नाउअडेज हम लोग CBSE में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लाखों पैसा खर्च कर रहे हैं, यूजिंग द अबाकस, व्हाटएवर द टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजीज हम लोग सिखा रहे हैं. बच्चे सीख रहे हैं, टेबल में सब जानते हैं. मगर मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, आप कोई एक CBSE स्टूडेंट को 7, 8, 9 क्लास बच्चे को पूछ लीजिए, इफ 1 kg ऑफ राइस इज 17 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 350 ग्राम ऑफ राइस, वो इमीडिएट आपको बता नहीं सकता. काउंट नहीं कर पाऊंगा. वो आपको इमीडिएट नहीं बता सकता.
तो यही मैं बता रहा हूँ, दैट इज ए स्किल। वो जो किराना दुकान में जो बैठा हुआ है छोटा सा बेटा बता पा रहा है, वो है स्किल एंड इट इज अनस्किल्ड। तो एजुकेशन पॉलिसी में मैं बताना चाहता हूँ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मतलब, और स्किल्ड मतलब आपको ये मत समझिए कि प्लम्बर हो कि कारपेंटर हो। स्किल मतलब कोई भी फील्ड में आप लोग नॉलेज गेन करना है, एक्वायर करना है, फैमिलियर होना है, दैट इज नोन एज अ स्किल। तो मतलब एक बहुत ही वैरायटी ऑफ, जैसे हम कह सकते हैं, स्कोप है हमारी पूरे सोसाइटी में, जिसको पेरेंट्स देख नहीं पा रहे हैं, जिसको टीचर्स बता नहीं पा रहे हैं स्टूडेंट को सही ढंग से। और प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, मतलब कि बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, तभी स्किल डेवलप हो सकते हैं। बिकॉज सिर्फ बाय वीडियोस देखने से या फिर लिखने से स्किल डेवलप नहीं हो सकती है। यू हैव टू डू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बट सर यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, और जैसे जैसे इन्वेंशंस बढ़ रही हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है लाइफ में। सो इसमें जो माइंड कंट्रोल की मतलब सबसे बड़ी, जो हमने आपने फोर्थ फिंगर बताया था, सो माइंड कंट्रोल एक बहुत ही बड़ा इशू हो गया है आज यंगस्टर्स में। बिकॉज आप देखो इंस्टाग्राम पे हम लोग कुछ सोचने बैठते हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता हम कब इंस्टाग्राम पे चले गए। सो इस कंसर्न में कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच करेगा एक बच्चा, या फिर पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चे को गाइड करना चाहिए ताकि अपना माइंड कंट्रोल कर सके, अपने इमोशंस कंट्रोल कर सके? इस बारे में क्या कहना है आपका? इट्स वेरी सिंपल। ये कि बहुत अच्छा चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर के फैमिली में एक अवेयरनेस डेवलप बहुत जरूरी है। अवेयरनेस मतलब जैसे कि स्कूल में कुछ फीडिंग दे रहे हैं, दैट इज नॉट द सफिशिएंट होता है। हम अभी जो पढ़ा रहे हैं, जस्ट मार्क ओरिएंटेड बच्चे को प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस मार्क ओरिएंटेड में बच्चे क्या होता है ना, अपने मम्मी पापा और वो किताब का अलावा कुछ नहीं सीख पा रहा है। उसको थोड़ा फैमिलियर करना चाहिए। जो अभी एक ट्रेडिशन हुआ है न्यूक्लियर फैमिली अभी अपना मेट्रो सिटी में आप काफ़ी तक वो चल रहा है। भुवनेश्वर में देख रहे हैं मम्मी पापा और बेटा और बेटी ओनली वन, तो उसमें वो कन्फाइंड हो जाता है, उसका दिमाग ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो न्यूक्लियर फैमिली को छोड़ के थोड़ा सा उसका दादा दादी, ये के फर्स्ट फैमिली जो अटैचमेंट फैमिली रखना बहुत ही जरूरी है। उसमें बच्चे सीखते हैं, उसमें इनर डेवलपमेंट होता है। इसलिए हम गांव और शहर के बच्चों में एक एथिकल डिफरेंस देख सकते हैं। yes. कि गांव का बच्चे में थोड़ा सा मतलब शर्माहट होगी उसके अंदर, थोड़ा शर्माएगा, आएगा तो पैरों का हाथ लगाएगा, मतलब कि उसका चलने फिरने का, बैठने का ही पूरा ढंग चेंज होता है। एक तो विलेज बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज अच्छा हो जाता है। हाँ जी। ड्यूटी की उनका मतलब सारे चीज में आगे बढ़ हो जाता है, और उनका मेंटल एक्सरसाइज सॉलिड हो जाता है, और वो स्पून फीडिंग नहीं होता है। एग्जैक्टली। जो स्पून फीड बोलते हैं ना, तो अर्बन में बच्चे स्पून फीड हो जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को, आपका गाइडेंस में सारी चीज कराइए, आपका नजरअंदाज में सारी चीज कराइए, मगर बेटा और बेटी को बोलिए खुद करने के लिए। दे हैव टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। खुद से करने के लिए सारी चीज आप सिखाएंगे, धीरे धीरे उसका ब्रेन एक्सरसाइज होगा। वो जो ब्रेन एक्सरसाइज मेरा फिफ्थ फिंगर था ना, दैट इज जो ब्रेन मैनेजमेंट। वही ब्रेन मैनेजमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ, आपका स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, योगा जरूरी है, एथिक्स भी जरूरी है, कल्चरल इवेंट्स भी जरूरी है। तो उसका हुनर है गाने में छोड़िए, उसका हुनर है डांस में छोड़िए, उसमें प्रभाव मत रखिए, तो सिर्फ पढ़ेगा मार्क रखेगा, वो मार्क कुछ काम में नहीं आएगा। पेरेंट्स को इस चीज के ऊपर अवेयरनेस करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक फील्ड से पैसा कमाया जा सकता है। हाँ। बिकॉज पेरेंट्स को कंसर्न होता है कि पैसा नहीं, कहाँ से पैसा कैसे आएगा, नाचने से पैसा कैसे आएगा, गाने से पैसा कैसे आएगा, बट लोग कमा रहे हैं पैसा इस चीज। Yes. Now through this electronics media, we get it. The guys are from the slum area. They can reach in different level. Yes. तो जिसका पास हुनर है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट वही, मेरा फिफ्थ फिंगर, दैट इज योर ब्रेन मैनेजमेंट, काइंडली डू इट। सो सर जैसे मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भी बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, तो हमारा जो माइंड होता है वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार होता है। मतलब हम हर तरीके के, मतलब जब हम छोटे होते हैं तभी हम कभी आग में हाथ डाल दिया, तो कभी कैंची से अपने आप को काट रहे हैं। तो मतलब हमारा जब तक हम एक ऐसी लेवल की स्टेज पे नहीं पहुंच जाते हम सही और गलत में फैसला कर सकते हैं, शायद तब तक, शायद बुढ़ापे तक कुछ लोग सही और गलत में फैसला नहीं कर पाते, एडिक्टेड हो जाते हैं कुछ चीज़ों के। तो जब एक बच्चा स्कूल और कॉलेज में एंटर कर रहा है, 11th-12th में या फिर कॉलेज में, कॉलेज अथॉरिटीज जानती हैं कि बच्चा ड्रग एडिक्ट हो सकता है, स्टिल कॉलेज की प्रेमिसेस के आसपास क्यों ड्रग्स और ये सप्लाई होने की मतलब ये छूट दी जाती है, और क्यों कॉलेज प्रेमिसेस उसको रोक नहीं पा रहे होते हैं? कुछ कॉलेजेस में जैसे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
In fact, that is available in the higher education system. In higher education system nowadays, the universities or the reputed colleges are near to the city. So in fact, there is a township where it was generated. It sometimes it happened also that drugs are available inside the campus premises. Yes, yes. For that, in the university level, I can say that the professors are the very good professors, but they are only thinking about the teaching. They are only to pass the knowledge to the students, nothing else to it. So in fact, the students have their own union, student has their own parameter. So definitely the students are moved in the other direction. And the political parties are also giving the fund to the students. So obviously they created bad path to move in a bad direction. But we can break it also. We can stop that also. I can say that in universities or the colleges, big colleges, 10% of the 5% students are in this level. Another 90 to 95% of students are the career oriented, 90 to 95% are the study oriented. These 5 to 10% students are making the pollution to the entire environment. Yes. So now, what my suggestion, my request to the other friends, because these students are grown-up students, they will be listening the voice, they will be listening the suggestions from their friends as compared to the teachers, as compared to the parents. So my request to the young and dynamic students, so they make their awareness to their friends. For example, in my period when I was reading in my college, you can trust me. Always in my roommate there must be a gutka wala, pana wala, like they have the practice of the gutka or pana. But I have that power in my childhood. I mean, in my university time, I suggest to my friends. So, my dear friends, my dear students, so kindly, if any of your friends are in that way having the certain drugs or wine, so kindly rectify it. Make challenge to yourself to make from that direction to good direction. So मतलब हम ये वाले पॉइंट से ये समझ सकते हैं कि आपके पास एक ऐसी नॉलेज थी जिसने आपको रेजिस्ट किया ये चीज़ पर, ये प्रैक्टिसेस करने के लिए रेजिस्ट किया, मतलब आपने आपके पेरेंट्स ने आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रखी थी इन सब चीज़ों को लेके कि आपको पहले से सही गलत की समझ थी। एग्जैक्टली मैं जब पढ़ रहा था 21-22 साल का था सर, मेरा हॉस्टल में मेरा जो बेडमेट रूममेट था ना, वो भी पान गुटखा का प्रैक्टिस था उसका। मतलब मैंने उसको चेंज कर दिया। मेरे 21-22 साल का अंदर मैंने उसको फ्रेंडशिप का समझा के चेंज कर दिया। उस डायरेक्शन से मैं यही मैसेज छोड़ना चाहता हूँ, चाहे आपका कोई भी फ्रेंड रूममेट हो कि साइड रूम में रहते हैं, कि आपका सर्कल में कोई भी बंदे इस पान गुटखा वाइन और वट एवर थिंग्स लेना चाहता है, आप उसका अवेयरनेस डेवलप करो। आप अवेयरनेस करोगी तो वो ज़्यादा सक्सेस होगा इफ 3rd विल बी सेफ। तो मेरा वही सजेशन है कि आपका फ्रेंड को आप ही ठीक कर सकते हैं, वो आपका फ्रेंड है, बाद में किसका बेटा है और किसका बेटी है। बिल्कुल ये एक मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, फ्रेंड ही फ्रेंड को सही डायरेक्शन से ले सकता है, ये एक तो गुरु मंत्र है। एसोसिएशन चेंज करने से ही एसोसिएशन चेंज करने से सर्कल चेंज होगा। यस एसोसिएशन डेफिनेटली। मतलब कॉलेजेस में जहाँ भी हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो जो भी कॉलेज डिपार्टमेंट्स रहते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की एसोसिएशन चेंज कर दी जाए। अभी धीरे-धीरे सम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैज आल्सो टेकन दैट टाइप ऑफ स्टेप्स। कुछ योगा वगैरह कराते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कराता है, इसमें माइंड भी चेंज होता है। आपने एक क्वेश्चन में जो सुसाइड टेंडेंसी का बात बोले, सुसाइड तो कुछ भी लेके बच्चे का माइंड में क्या आ जाता है, कुछ कोमा टाइप का हो के वो सुसाइड को कमिट कर लेता है, मगर ये बिल्कुल करना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ लंबा रेस है, हमको काफ़ी सारा चीज़ आएगा, काफ़ी सारे स्टेप्स मिलेगा, काफ़ी अप और डाउन आएगा, कुछ सीखेंगे, कुछ सक्सेस मिलेगा, कुछ अनसक्सेस मिलेगा, मगर उसको भेद करके उसको क्रश करके हम जा सकते हैं, दैट इज द ग्रेटनेस। तो वही भी जो सुसाइड टेंडेंसी का जिसका है, मतलब जो खास करके हॉस्टल में ज़्यादा होता है, फैमिली में कभी कभी हो जाता है, तो उस चीज़ को वही फैमिली मेम्बर की हॉस्टल में अपना फ्रेंड का वही सजेशन दिलाता हूँ, जो बच्चा साई नेचर में रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, अपना दुख किसको शेयर नहीं कर पाते हैं, उस बच्चे को थोड़ा सा अवेयरनेस करना चाहिए। एक टीचर भी अवेयरनेस कर पाएगा, लॉ असिस्टेंट भी अवेयरनेस कर पाएगा, कॉलेज का ऑफिस असिस्टेंट भी कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेटर भी कर सकता है, जिसको सबको वही सजेशन है, जिसका नज़र में वही चीज़ आ रहा है, सबने स्टेप लेना चाहिए।
सो अमरजीत, एट द एंड मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ एंड आपका थ्रू में मैसेज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स भेजना चाहता हूँ। जो 5 फिंगर मैंने बताया था, और एक बार उसका कैप्शन थोड़ा बता देता हूँ, सबका याद रह जाएगा। नंबर 1 इज योर फंडामेंटल, दैट इज नथिंग, दैट इज योर बिल्डिंग द फाउंडेशन. You can say that the building the solid foundation. Number 2 is your potential discovery, that means identification of your student's strength and interest. Number 3 is your career preparation. I mean, maybe go to the JEE, IIT, or you can say NEET or any other career preparation. And fourth one is the revision and the practice. So you have to practice, you have to assess to ourselves. And finally it's important, that is your brain management. ये जो मैं कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन किया हूँ आपका जरिए मैं बच्चों को पास करना चाहता हूँ. And for this, any type of a query should be required, any type of clarification should be required, or any problem arises. So my dear, I am available with this Amarjit, and definitely I'll try my level best to solve you all of your problems. At the end, I want to say one thing, my dear you all. Like you know that the Newton's third law, every action has a equal and opposite reaction. Yes. So in the same manner, just I want to say that जो अवेयरनेस हम दे रहे हैं ना सारे चीज़ को, कि हम जो करेंगे वो वापस आएगा. मतलब अच्छे से पढ़ाएंगे करेंगे, अच्छे से नॉलेज मिलेगा और आप उस लेवल में पहुंच जाएंगे जो मम्मी पापा आपका अच्छा चाहते हैं.